we were discussing developing business writing techniques, and in this topic we have gone through and we have discussed that in writing techniques usually we have the 4 writing techniques. In order to develop a business writing, we are going to have the 4 techniques. Number 1 is developing emphasis. Number 2 is using active and passive voice effectively. Number 3 is developing parallelism, and 4th one is escaping dangling and misplaced modifiers. We have already discussed the first technique, which is developing emphasis. Now today we will discuss using active and passive voice, developing parallelism, and escaping dangling and misplaced modifiers. So active and passive voice. While developing a business writing technique, active and passive voice also, the use of active and passive voice should be effective, and active and passive voice should be used effectively. In active voice, you know that active sentence कौन सा होता है, we have already discussed it. You already knew this. You already know this thing. In active voice sentence, the subject actually performs the action, or the stress is on the subject. On the other hand, in a passive voice sentence, the subject receives the actions, and the stress is on the object rather than subject. So this is the difference between active sentence and passive sentence. Active sentences are more direct, they are easier to understand, and they are usually shorter. Similarly, most business writings should be in active voice. Most business writings should be in active voice, and passive voice is useful to emphasize an action rather than performer and de-emphasize negative news. It means that first of all तो हमने देखा कि difference क्या active and passive voice में. In active voice sentence the stress is on the subject. On the other hand, in passive sentence the stress is on the object, on the performer. Similarly, active and passive voice what are the advantages when you use active voice in your business writing? Active voice के क्या advantages है? Active voice they are easy to understand, they are more direct sentences, and they are usually shorter sentences. But most business writings we usually go for active voice sentences, and we usually use active voice sentences. But the passive voice sentences are useful to emphasize an action rather than performer. लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमारा एम्फसाइज किस पे होता है? एक्शन पे. उसमें हम एक्शन को या ऑब्जेक्ट पे जो है वो स्ट्रेस देते हैं रादर देन परफॉर्मर, रादर देन सब्जेक्ट. एंड सेकेंडली, व्हेन वी वांट टू डी एम्फसाइज अ बैड न्यूज़ and नेगेटिव न्यूज़, देन वी यूज पैसिव वॉइस सेंटेंस. नेक्स्ट इज द थर्ड टेक्निक, दैट इज डेवलपिंग पैरेललिज्म. Developing parallelism means that parallelism, what is the parallelism? Parallelism क्या होता है? Parallel अगर आप देखें तो parallel means आमने सामने. So here parallelism means that making your writing balanced. अपनी writing को आपने balance करना है. Now how can you make your writing balance? अपनी writing को आप balance कैसे कर सकते हैं? Making your writing parallel means expressing 2 or more than 2 similar ideas. यानी कि कोई भी 2 सिमिलर एक ही तरह के जो ख्यालात हैं, एक ही तरह के जो आइडियाज़ हैं, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा एक ही तरह के आइडियाज़ जो हैं उनको आपने यूज़ करना है सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में. इट मीन्स दैट इज सेड टू बी अ पैरेलल इन राइटिंग, पैरेललिज्म इन राइटिंग. पैरेललिज्म इन राइटिंग मीन्स अ बैलेंस्ड राइटिंग. पैरेललिज्म इन राइटिंग का मतलब होता है कि बैलेंस्ड राइटिंग. अब वो बैलेंस्ड राइटिंग किस तरह से होती है? राइटिंग को पैरेलल करने का मतलब ये होता है कि you are expressing the 2 similar ideas or more than 2 similar ideas using the same grammar structure. आपने 2 या 2 से ज़ायद जो एक ही तरह के आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए you use the same grammatical structure. It means that कि if one idea, दोनों आइडियाज़ अगर एक जैसे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और अगर आप एक आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए you are using compound sentences, then you will also use जो है वो दोबारा जब आप उसको पैरेलल अपनी राइटिंग को बैलेंस करने के लिए जो है दूसरा जो आइडिया जिससे मिलता जुलता है उसके लिए भी यू विल ऑल्सो यूज़ अ कंपाउंड सेंटेंस. ऐसा नहीं होगा कि एक सेंटेंस अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग वन सेंटेंस, इफ़ यू आर राइटिंग वन सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस एंड सेकेंडली यू आर राइटिंग अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, so this will create imbalance in your writing. In order to create a balance in your writing, you need to express the 2 similar ideas using the same grammar structure. आपने एक ही तरह का grammatical structure जो उसमें यूज़ करना है.
पैरेललिज्म इज स्किलफुल राइटिंग टेक्निक दैट क्रिएट्स एक्चुअली बैलेंस इन राइटिंग, और बैलेंस्ड राइटिंग जो आपकी राइटिंग को बैलेंस करती है, मुतवाजन करती है, आपकी राइटिंग में जो है वो एक बैलेंस लेकर आती है। तो इसीलिए ऐसा है कि अगर आप एक कंपाउंड में लिख रहे हैं तो दूसरा भी अपने कंपाउंड में लिखना है। ऐसा नहीं कि एक सिंपल लिख रहे हैं और एक कंपाउंड कम्प्लेक्स में लिख रहे हैं, एक जो है कंपाउंड में लिख रहे हैं, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिख रहे हैं, सॉरी दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहे हैं। सो इट मीन्स दैट यू विल यूज़ द सेम ग्रामर स्ट्रक्चर। एंड पैरेलल सेंटेंसेज दे आर ईजी टू रीड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अब इसकी एग्जांपल आपके क्या हो सकती है पैरेलल सेंटेंसेज की? फॉर एग्जांपल अब कुछ वर्ड्स हैं जो कि पैरेलल सेंटेंसेज में जो है आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड्स computing, coding, decoding, recording and storing. So these are all words, these are the parallel words. ये parallel words हैं। किस तरह से parallel words हैं? अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें, all words are ending with ing. Again, you can see that. I repeat, computing, coding, recording, decoding, storing. इस तरह के तमाम words हैं, all words are ending with ing. So it is giving a balanced view, or it is making your writing balanced. So this is called parallel or parallelism in writing. But if you write it like this, लेकिन अगर आप जो है इसको इस तरह से जो है एक्सप्रेस करते हैं इस लिस्ट को, to express the list like this: computing, coding, recording and storage, not storing but storage. Now the sequence is disturbed because the last item is not ending with ing, क्योंकि लास्ट आइटम जो है यू आर सेइंग स्टोरेज नॉट स्टोरिंग, ठीक है। तो वो एक जो बैलेंस्ड लग रही थी राइटिंग जो है वो बैलेंस्ड नहीं रही, और उसमें उसके ऑर्डर में जो है वो एक डिस्टर्बेंस आ गई है, बिकॉज द लास्ट आइटम इज़ नॉट व्हाट द रीडर एक्सपेक्ट्स। क्योंकि लास्ट आइटम जो है वो है जो रीडर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि रीडर ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था इफ़ यू आर यूजिंग कंप्यूटिंग, कोडिंग, रिकॉर्डिंग, डिकोडिंग, द नेक्स्ट विल बी स्टोरिंग। सो ट्राई टू, इट मीन्स दैट बैलेंस रीडिंग किस तरह आप बैलेंस राइटिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये पैरेललिज्म में अपने दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि पैरेलल सेंटेंसेस दे आर इजी टू रीड, दे आर इजी टू कम्प्रीहेंड एंड दे आर आई मीन इसमें यू यूज़ द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस सिमिलर आइडियाज़, टू और मोर सिमिलर आइडियाज़। अगर आप एक ही तरह के दो और या दो से ज़ायद सिमिलर आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आप एक ही तरह का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो वो यूज़ करते हैं, और ये क्यों यूज़ करते हैं? इन ऑर्डर टू मेक योर राइटिंग बैलेंस। अब उसमें ये है, इट मीन्स कि आपने क्या करना है कि ट्राई टू मैच नाउन्स विद द नाउन्स, वर्ब्स विद द वर्ब्स एंड क्लॉजेस विद द क्लॉजेस। नाउन्स को नाउन्स के साथ मैच करने की कोशिश करें, वर्ब्स को वर्ब के साथ, क्लॉजेस को क्लॉजेस के साथ। सो इस तरह से यू विल बी एबल टू मेक योर राइटिंग बैलेंस्ड। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अवॉइड मिक्सिंग। और जब आप एक बैलेंस राइटिंग लिख रहे हैं देन इट डजेंट मीन कि आपने, मैंने अभी क्या कहा कि आपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है यू हैव टू फोकस, यू नीड टू फोकस ऑन द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, दैट यू नीड टू राइट इन अ सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब इट डजेंट मीन कि एक सेंटेंस आप एक्टिवाइज में लिख रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस जो है यू आर राइटिंग इन अ पैसिवाइज। सो डू नॉट मिक्स एक्टिवाइज सेंटेंसेज विद द पैसिवाइज, और डू नॉट मिक्स एक्टिवाइज वर्ब्स विद द पैसिवाइज वर्ब्स। एक्टिवाइज वर्ब्स को पैसिवाइज वर्ब्स के साथ आपने जो है वो मिक्सअप नहीं करना। ट्राई टू मैच नाउन्स विद द नाउन्स, वर्ब्स विद द वर्ब्स, क्लॉजेस विद द क्लॉजेस। So it means that your purpose, your target is to keep the wording balanced, expressing the similar ideas. So that is, ये क्या कहते हैं जी, that is the third technique which is developing parallelism. Here I will give you the one example. इसमें एक example जो है मैं आपको देती हूँ, बाकी जो है few examples are also written in your resource pack at the page number 74. So अभी एक मैं sentence पढ़ूँगी जिसमें lack of parallelism है. Our primary goals are to increase productivity, reduce cost and the improvement of product quality. ठीक है जी। अब इसमें जो है इसमें lack of parallelism है। अब इसको आप parallel कैसे करेंगे? Our primary goals are to increase productivity, reduce cost and improvement की बजाय आप क्या लिखेंगे? and improve product quality. अब verbs के साथ आपने verbs मैच करना। improvement is not a verb. improvement क्या है? it's a noun. ठीक है जी। आपने verb के साथ verb को मैच करना है, तो मैचेस आपने verb को verbs के साथ जो है वो मैच करना है। इसलिए जो अभी मैंने आपको बताया कि nouns के साथ nouns मैच करें, verbs के साथ verb मैच करें, और clauses के साथ जो है वो clauses को जो है वो अपने मैच करना है। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ clauses की। shall by audits all accounts lettered 8 through N. Accounts lettered M through Z are audited by Andrew.
तो ये जो है एक लैक ऑफ पैरेललिज्म है सेंटेंस में. अब ये क्लॉज है, ठीक है जी. क्लॉज यू नो दैट इट्स अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग और अ कंप्लीट सेंस. Shelley audits all accounts letter A through Z through L. Andrew audits accounts lettered M through Z. अब यहाँ पे अपने क्लॉजेस को क्लॉजेस के साथ मैच करना है. अब आप देखें जहाँ पर आपने एंड्रू लास्ट पे यूज़ किया, अब देखें ऊपर वाला जुमला जो था वो एक्टिव वाइज में था, नीचे आप जो है बाय लगाकर आप पैसिव वाइज में ले आए. तो अपने एक्टिव को पैसिव के साथ मिक्स नहीं करना, क्लॉजेस को क्लॉजेस के साथ मैच करना है. यहाँ पर जो है वो अपने नाउन की जगह पर नाउन लगाना है और इस तरह से जो है आपकी राइटिंग जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगी. When you will go through more examples and it will be more clear to you. Otherwise we will then if you have still any problem then we will discuss it in Zoom meeting. So the last writing technique is escaping dangling and misplaced modifiers. Dangling modifiers जो है you have already gone through this in English too. What is dangling modifiers? Modifiers can be adjective, it can be adverb. मॉडिफर्स क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा. देखिए अगर आप एडजेक्टिव की डेफिनेशन को थोड़ा सा जहन में लाएं, व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन विच टेल्स मोर अबाउट नाउन. व्हाट इज़ एन एडवर्ब? एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच टेल्स और विच मॉडिफाइज द वर्ब. सो मॉडिफर्स क्या होते हैं? जो मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं. तो दीज आर द मॉडिफर्स. अब वो कह रहा है कि डैंडलिंग मॉडिफर्स, एस्केपिंग आपने अवॉइड करना. यू नीड टू अवॉइड डैंडलिंग मॉडिफर्स एंड मिसप्लेस्ड मॉडिफर्स. अब डैंडलिंग मॉडिफर्स क्या होते हैं और मिसप्लेस्ड मॉडिफर्स क्या होते हैं? लेट्स डिस्कस इट. For clarity in your writing, modifiers must be close to the words they describe or limit. Number one, कि आप जो modifiers यूज़ कर रहे हैं उनको उन words के जो है वो close होना चाहिए, उनके करीब होना चाहिए जिन words को वो describe करें. Suppose कि अगर modifier जो है वो आपके adjective को अगर adverb है तो it means that वो verb को जो है modify कर रहा है तो it should be close to the verb. अगर जो है मॉडिफर जो है वो एडजेक्टिव है तो इट मीन्स दैट इट इज़ मॉडिफाइंग योर नाउन, सो इट शुड बी क्लोज टू नाउन. ठीक है जी. तो इसका मतलब ये है कि फॉर क्लैरिटी इन राइटिंग मॉडिफर्स मस्ट बी क्लोज टू द वर्ड्स दे डिस्क्राइब. सो फॉर क्लियर राइटिंग यू नीड टू अवॉइड डैंडलिंग मॉडिफर्स और मिसप्लेस्ड मॉडिफर्स. अब डैंडलिंग मॉडिफर्स क्या होते हैं? मॉडिफर्स क्लियर हो गया. मॉडिफर्स क्या होते हैं? दूसरी बात है कि मॉडिफर्स शुड बी क्लोज टू द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब. यानी कि अगर मॉडिफायर जो है वो आपका एडजेक्टिव है तो इट शुड बी क्लोज टू द नाउन. अगर वो एडवर्ब है देन इट शुड बी क्लोज टू द वर्ब. डैंडलिंग मॉडिफर क्या होता है? अ मॉडिफर डैंगल्स. डैंगल्स का मतलब इधर उधर घूमता फिरता है. एक डैंगलिंग मॉडिफर वो होता है व्हेन द वर्ड और फ्रेजेस इट डिस्क्राइब्स इज मिसिंग फ्रॉम इट्स सेंटेंस. उसको डैंगलिंग मॉडिफर कहते हैं. यानी कि डैंगलिंग मॉडिफर इज़ अ मॉडिफर व्हेन द वर्ड और फ्रेज, जब कोई लफ्ज़ या कोई फ्रेज जो है वो सेंटेंस में से मिसिंग होता है और इट डिस्क्राइब्स इज मिसिंग फॉर्म. तो और ये डिस्क्राइब करता है उस मिसिंग वर्ड को फ्रॉम द सेंटेंस, दैन इट इज़ सेड टू बी अ डैंगलिंग मॉडिफर. ठीक है जी. आई रिपीट, अ मॉडिफर डैंगल्स व्हेन द वर्ड और फ्रेजेस इट डिस्क्राइब्स. जब ये वो वर्ड और फ्रेज जो ये डिस्क्राइब कर रहा होता है जब वो मिसिंग होता है सेंटेंस में से तो उसको डैंगलिंग मॉडिफर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर वर्किंग ओवर टाइम द रिपोर्ट वॉज फाइनली फिनिश्ड. आफ्टर वर्किंग ओवर टाइम द रिपोर्ट वॉज फाइनली फिनिश्ड. अब इसका मतलब क्या है? द सेंटेंस पढ़ने से आपको क्या लग रहा है? द सेंटेंस सेज दैट द रिपोर्ट वॉज वर्किंग ओवर टाइम. नो, इसका तो ये मतलब निकल रहा है ना, आफ्टर वर्किंग ओवर टाइम द रिपोर्ट वॉज फाइनली फिनिश्ड, कि शायद रिपोर्ट जो है वो ओवर वर्क कर रही थी या ओवर टाइम जो है वो रिपोर्ट ने लगाया. अगर आप इसका लिटरली मीनिंग देखें, द सेंटेंस इज कन्वेइंग द मीनिंग, द सेंटेंस सेज दैट रिपोर्ट वॉज वर्किंग ओवर टाइम. तो रिपोर्ट तो नहीं कर सकते ना ओवर टाइम. तो आपने इसका मतलब है कि इसमें जो है वो वर्ड और फ्रेज मिसिंग है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है. तो डैंडलिंग मॉडिफर जो है इसमें वो क्या है? वो वर्ड और फ्रेज जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है लेकिन वो मिसिंग है जुमले में. वो क्या मिसिंग है? आफ्टर वर्किंग ओवर टाइम वी फाइनली फिनिश द रिपोर्ट. हमने जो है वो फाइनली रिपोर्ट को फिनिश कर लिया. वी फाइनली फिनिश द रिपोर्ट. तो वी जो है इसमें मिसिंग था, दैट इज डैंगलिंग मॉडिफर. सो डैंगलिंग मॉडिफर इज अ वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स इज मिसिंग फ्रॉम इट सेंटेंस. जो अपने सेंटेंस में से मिसिंग होता है दैट इज सेड टू बी अ डैंगलिंग मॉडिफर. आगे देखिए मिसप्लेस्ड मॉडिफर, जो कि गलत जगह पर लगा होता है. मिसप्लेस्ड मीन्स उसकी जगह गलत होती है. मिसप्लेस्ड मॉडिफर क्या होता है? यानी कि वो सेंटेंस में मौजूद तो होता है लेकिन वो अपनी एक्यूरेट प्लेस पे मौजूद नहीं होता. A modifier is misplaced when the word or phrase it describes is not close enough to be clear. यानी कि इसका मतलब ये है कि उस वक़्त जो है मॉडिफर वो मिसप्लेस्ड होता है जब वो उस वर्ड और
फ्रेज़ को जिसको उसने डिस्क्राइब करना होता है उसके इतना क्लोज नहीं होता कि वो क्लियर मीनिंग कन्वे कर सके। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इट शुड बी, बिल्कुल बिगनिंग में आई हैव टोल्ड यू कि मॉडिफायर शुड बी वेरी क्लोज टू द वर्ड्स विच इट्स गोइंग टू बी डिस्क्राइब। वो जिस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है उसको उसके क्लोज होना चाहिए। अब मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का मतलब ये है कि यानी कि अगर जो है एडवर्ब है तो इट मीन्स इट्स डिस्क्राइबिंग वर्ब, इफ़ इट्स एडजेक्टिव इट डिस्क्राइबिंग नाउन। ठीक है जी, तो अगर जो है वो एडवर्ब है तो इट शुड बी क्लोज टू द वर्ब, अगर वो एडजेक्टिव इट शुड बी क्लोज टू द नाउन। तो अगर उसके क्लोज नहीं होगा तो इट विल नॉट बी एबल टू कन्वे अ क्लियर मीनिंग। सो तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज सेड टू बी अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर इज अ मॉडिफायर इज मिसप्लेस्ड इन अ सेंटेंस व्हेन द वर्ड और फ्रेज इट डिस्क्राइब्स, जब वो जो है उस लफ्ज़ या उस फ्रेज जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा होता है उससे दूर होता है, उसके इतना क्लोज नहीं होता ताकि वो क्लियर मीनिंग जो है वो कन्वे कर सके, तो वो क्या होता है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर होता है। फॉर एग्जांपल, 5 fighters rescued a dog from a burning car that had a broken leg। ठीक है जी, अब इसमें जो है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है, यानी कि वो जिसको डिस्क्राइब कर रहा है, जिस नाउन को, यहाँ पे नाउन क्या, डॉग, यहाँ पे अब डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है कि फायर फाइटर्स ने रेस्क्यू किया उस डॉग को जिसकी टांग टूट गई थी फ्रॉम अ बर्निंग कार। अब यहाँ पर जो है दैट हैड अ ब्रोकन लेग, अब ये दैट हैड अ ब्रोकन लेग जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है मजीद आपके नाउन को, तो इसको इट शुड बी क्लोज टू द नाउन। ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फ्रॉम अ बर्निंग कार। तो ये है यहाँ पर इस जुमले में ये क्या है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, गलत जगह पर लगा हुआ है। तो इसको जब आप करेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसका मतलब ये कि ऑब्वियसली द कार डिड नॉट हैव अ ब्रोकन लेग, कार की तो लेग नहीं टूटी थी ना, लेग तो टूटी है डॉग की। तो जो नाउन है उसको जो मॉडिफायर है जो डिस्क्राइब करे नाउन को, उसको किसके क्लोज होना चाहिए, नाउन के, उस वर्ड और फ्रेज के क्लोज होना चाहिए जिसको वो डिस्क्राइब करे। तो दैट हैड अ ब्रोकन लेग, तो किसकी लेग टूटी है, डॉग की, तो उसको एक्चुअली वो उसको डिस्क्राइब करे, सो इट शुड बी क्लोज टू दैट। तो ये इसमें करेक्ट क्या होगा, आप इसको जो है इसकी एक्यूरेट जगह क्या होगी, it means के the modifier close to the words it describes, it should be close to those words, it should be close to the dog, इसको जो है उसके close होना चाहिए जिसको डिस्क्राइब कर रहा है। Firefighter rescued a dog with a broken leg from a burning car। So अब जब इसको आप that had a broken leg को जब आप इसके करीब लगाएंगे तो now the modifier is at its accurate place because it is now describing the word or phrase which it is मतलब it is close to that word or phrase which it is going to describe। यानी कि अब जो है मॉडिफायर अपनी असल जगह पर है, उस नाउन उस वर्ड और फ्रेज के करीब है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। सो दैट इज डैंगलिंग मॉडिफायर और डैंगलिंग मॉडिफायर एंड मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। दीज आर द 4 राइटिंग skills and these are the 4 business message writing skills. Now the next topic is, it's a very short and precise topic, we have already you have already familiar with this topic, that is drafting well organized effective paragraph. Effective paragraph means that good business writers also develop a well organized paragraph and they always craft a well organized paragraph by focusing on single main idea। जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस राइटर्स हैं वो हमेशा जो है वो एक वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ लिखते हैं, और एक वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल मेन आइडिया पर फोकस किया जाता है। अ वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ कंसिस्ट ऑन दीज 3 थिंग्स। नंबर 1 टॉपिक सेंटेंस, नंबर 2 सपोर्ट सेंटेंस, नंबर 3 बिल्डिंग पैराग्राफ कॉरेंट। कॉरेंट्स मीन्स कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है जी, और जो होता है टॉपिक सेंटेंस वो क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट रिवील्स द सब्जेक्ट ऑफ अ पैराग्राफ, जो आपको बताता है कि इस पैराग्राफ का सब्जेक्ट क्या है। ठीक है जी, और जो सपोर्ट सेंटेंस होता है वो क्या होता है, दैट डेवलप्स द टॉपिक इन विच यू राइट मोर सेंटेंसेज टू डेवलप योर मेन आइडिया, टू डेवलप योर टॉपिक सेंटेंस, टू डेवलप द सब्जेक्ट ऑफ योर पैराग्राफ। एंड द थर्ड वन इज दैट बिल्डिंग पैराग्राफ कॉरेंट्स, यानी कि कॉरेंट टॉपिक क्या होता है, क्राफ्टिंग, इसमें जो है वो जो कॉरेंट पैराग्राफ है इट मीन्स वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ, और बिल्डिंग कॉरेंट्स मीन्स दैट पैराग्राफ्स आर कॉरेंट व्हेन आइडियाज़ आर लिंक्ड टुगेदर, व्हेन द आइडियाज़ आर लॉजिकली लिंक्ड। उस वक्त एक पैराग्राफ ऑर्गेनाइज्ड होता है, कॉरेंट होता है, जब उसमें आइडियाज़ जो हैं उनको लिंक किया जाता है। दैट इज़ इट मीन्स दैट व्हेन वन आइडियाज़ लीड्स लॉजिकली टू द नेक्स्ट, जब एक आइडिया दूसरे आइडिया तक लॉजिकली आपको कनेक्ट करता है, इट मीन्स दैट व्हेन आइडियाज़ आर कनेक्टेड और लिंक्ड विद ईच अदर लॉजिकली, जब एक दूसरे के साथ आइडियाज़ जो है वो कनेक्टेड होते हैं और लिंक्ड होते हैं लॉजिकली, इट मीन्स दैट द पैराग्राफ इज़ ऑर्गेनाइज्ड, पैराग्राफ इज़ कॉरेंट
Coherent paragraphs are those paragraphs when ideas are linked. It means that when one idea leads logically or linked to another ideas logically. So this is developing well organized paragraphs और effective paragraphs. और वो आपने कैसे effective paragraphs जो है, how can you build up an effective paragraph? You can first of all you need to keep one single subject, or you need to focus on a single main idea, and then a well organized paragraph can consist on topic sentence, support sentence, and coherent paragraph, and develop building coherence in paragraph. So that is the topic. Your chapter has been completed. Hopefully it will be easy for you to understand if you will go through your resource pack. This was the chapter number 3. Now we will start the next chapter in the next class, that is revising the business message. Thank you.